Good day, my dear students. Today we are going to deal with the very fifth poem, the Ball Poem, title of the poem, written by John Berryman. So these are the meanings written here, and you students kindly note them down and kindly by heart. So the entire poem, we need to, just to see loss. A boy loses his ball, and what happens? There comes grief, sadness. When we lose something, there is sadness. But we must know that we can't buy them back. Whatever we lost, we can't buy them back. So what do we need to do? We need to stand up and move forward. We lost many things in day-to-day life, but we need to move forward. So we directly go to the poem now. What is the boy now who has lost his ball? What is it to do? So what is the boy now to do who has lost his ball? So उस बच्चा जिसका गेंद खो गया है वह अब क्या करेंगे? I saw it go. I is the poet. So poet वहां पर खड़ा था जब ये बच्चा खेल रहा था, तो poet saw it go. I saw it go. Poet ने इस गेंद को जाते हुए देखा. How the ball was going? Merrily bouncing down the street, and then bouncing, which means jumping, uchalte huए, merrily, which means happily. But ball cannot be happy, so we need to understand that without any problem. Merrily means without any problem. So the ball without any problem, बिना कोई रुकावट के एकदम उछलते हुए गया down the street के आगे गया, and then इसके बाद merrily over, स्ट्रीट के पार गया, merrily over, एकदम बिना कोई रुकावट के स्ट्रीट के पार गया. There it is in the water. स्ट्रीट के पार जाकर ये कहां पर जाकर गिर गया? पानी में जाकर गिर गया. No use to say, oh, there are other balls. ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है कि बहुत सारा दूसरा गेंद भी है. ये खोया हुआ गेंद के बदले बहुत सारा दूसरा गेंद खरीद सकते हैं. ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है. An ultimate striking grief fixes the boy. Ultimate striking, which means great. Grief means sadness. So ultimate striking grief, which means पूर्ण रूप से हिलाने वाला दुख. So fixes the boy. Fixes means here affects. So ये गेंद खोने के बाद वो पूर्ण रूप से दुखी हो गया. As he stands rigid. Rigid means firm, did, rigid. वो कैसे खड़ा था? ये गेंद खो जाने के बाद ये जो लड़का है ये जो बॉय है, he stands rigid. वो एकदम without any movement, एकदम निश्चल खड़ा था. Trembling means कांपते हुए. So वो लड़का एकदम without any movement, बिना कोई movement के trembling, कांपते हुए खड़ा था. Staring down, वहां पर खड़े होकर वो क्या घूर रहे थे? Stare means घूरना. Staring down all his young days into the harbor where his ball went. So where his ball went, जहां पर उसका गेंद खो गया, कहां पर था? ये हार्बर था. Harbor means बंदरगाह, where the ships are moved, where the ships are arriving. जहां पर गेंद गया, उस गेंद को वो वहां पर एकदम निश्चल खड़े हुए, कांपते हुए वो देख रहा था. All his young days. So all his young days, अपना जवानी के दिनों में. So you see, it is not merely the poet is talking about ball. Poet केवल गेंद के बारे में नहीं बोल रहे, but ball is symbol of childhood memories. तो बचपन का जो यादें हैं या जो मासूमियत है, जो क्वालिटीज है, उसको बॉल से कंपेयर किया गया है. That is the reason the poet has used the young days. अगर गेंद खो जाते पूरा बहुत सारा दिन इसी को ही देखते नहीं रहते, तो the poet is comparing the ball to the memory of childhood days. So he was standing there and staring. वो वहां पर खड़े होकर ये गेंद को घूर रहा था. I would not intrude on him. The poet is saying,
पॉइंट ये सब देख रहे, ये बच्चे को देख रहे, गेंद को देख रहे. सो पॉइंट इज सेइंग आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड डेलिबरेटली इन्वॉल्व, गुजरना या दखल करना, डेलिबरेटली जानबूझकर किसी के मामले में दखल करना. सो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. ये जो बच्चा है उसके मामले में पॉइंट गुजरना नहीं चाहते थे, क्योंकि द पॉइंट वांटेड द बॉय टू लर्न बाय हिमसेल्फ. क्योंकि पॉइंट ये चाहते थे कि उसका गेंद खो गया, अब आगे क्या करना है वो खुद सीखे. ए डाइम, अनदर बॉल. सो पॉइंट क्या कर सकते थे? ए डाइम. डाइम मीन्स 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट का कॉइन है. सो पॉइंट दे सकते थे ए डाइम. बच्चे को क्या दे सकते थे? ए डाइम. अनदर बॉल, इससे बच्चा क्या कर सकते थे? अनदर, एक दूसरा गेंद खरीद सकते थे. इज वर्थलेस, जबकि वो कैसा है? इट इज यूजलेस, इट इज वेस्ट. वर्थलेस मीन्स बेकार या यूजलेस. सो इट इज यूजलेस. सो गिविंग मनी टू द बॉय टू बाय ए न्यू बॉल इज यूजलेस. बच्चे को एक नया गेंद खरीदने के लिए अगर बॉय पैसा दिए होते तो वो एकदम बेकार हो जाते. नाउ उसने पैसा दिया नहीं है, तो नाउ okay, he senses first responsibility. He here, okay, boy. Now the boy senses means understands his first responsibility, duty या जिम्मेदारी. Now the boy understands his first responsibility. अब ये बच्चा खुद सीख रहे अपना ड्यूटी या पहला कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो खुद सीख रहे. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये कहां पर सीख रहे? इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन. पोसेशन मींस कब्जा. सो इस दुनिया में सब लोग सब चीजों को कब्जा करना चाहते हैं. हम लोग कब्जा करने वाले दुनिया में रहते हैं. विच मीन्स आई नीड टू पोसेस ए हाउस, आई नीड टू पोसेस a vehicle, I need to possess a new dress, new watches, different things. So इस दुनिया ऐसे है कि सब लोग सब चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल एक नया मोबाइल के ऊपर कब्जा करें, घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, वगैरह वगैरह. सो इट इज अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन. इस पोसेशन के दुनिया में ये बच्चे को अपना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो समझ में आ रहा है. पीपल विल उनको क्या समझ में आ रहा है? पीपल विल टेक बॉल्स, लोग हमसे गेंद छीनेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा हमसे कुछ ना कुछ खो जाएंगे. बॉल एकदम गेंद के बारे में इट सिंबलाइजेस मेनी थिंग्स, मेनी ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल थिंग्स और मेनी इमोशनल थिंग्स. सो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय. हमेशा गेंद या कुछ ना कुछ हमसे खोते रहेंगे. And no one buys a ball back. जो चीज हमसे खो गया है वो फिर से हम लोग वापस खरीद नहीं सकते. कोई भी जो खोया हुआ गेंद है उसको वापस खरीदते नहीं है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी कैसे है? एक्सटर्नल, बाहरी चीज है. सो आंतरिक चीज, अंदर की चीजों को पैसा से खरीद नहीं सकते. ये गेंद के साथ शायद ये बच्चे का बहुत सारा बचपन का मेमोरीज जुड़े हुए होंगे, तो वो सब हम लोग खरीद नहीं सकते. मनी कैन बाय ओनली अ बॉल. द इमोशंस, द मेमोरीज कनेक्टेड विद द बॉल कैनॉट बी बॉट विद मनी. ही इज लर्निंग, वो बच्चा सीख रहे. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. डेस्परेट मीन्स होपलेस, एकदम निराश. उनका गेंद खो गया तो वो निराश है. अब इस निराशा में भी वो सीख रहे. क्या सीख रहे? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी which means nature, स्वभाव. ये लॉस का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? what is the nature of loss? ये लॉस का कुछ हमसे खो जाते हैं, उसका स्वभाव क्या है? it gives us grief. क्या है? कुछ खोने के वजह से हम लोग दुखी हो जाते हैं. so that is the nature of loss. how to stand up? now he is learning the epistemology of loss, how to stand up. जब हमसे कुछ खो जाते हैं उसके बाद हम लोगों को कैसे उस परिस्थिति से बाहर आना चाहिए, कैसे हम लोगों को खड़े होना चाहिए. knowing what every man must one day know. so जब हमसे कुछ, हर एक आदमी से जब कुछ खो जाते हैं, one day, एक ना एक दिन वो सीख ही जाएंगे. ये लॉस हमें दुख देता है और हमको इससे आगे बढ़ना है, ना केवल दुख में ही पूरा जीवन बिताना, बल्कि इससे उभर कर आकर आगे बढ़ना चाहिए. वन डे, एक ना
एक दिन सब लोग, एवरी मैन विल नो, सब लोग ये जान जाएंगे. एंड मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, नो मेनी डेज, ये लॉस के बारे में जानने के लिए, उसका नेचर क्या है, स्वभाव जानने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को मेनी डेज, बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं. हमसे कुछ जब खो जाते हैं तो ओके, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा दिन शायद लग जाते हैं. सो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. बहुत सारे लोगों को लॉस से बाहर आने के लिए, लॉस से, जब लॉस के वजह से गिरा है, वहां से खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं. हमारा जीवन में शायद बहुत सारे चीजें हमसे खो जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल चीजें, शायद गाड़ी बंगला सब हमसे खो जाएंगे. उससे बढ़कर हमसे हमारा रिश्तेदार, रिलेटिव्स, हमारा लाउड वंस, फ्रेंड्स, ओके, इवन आवर लवर्स विल बी लॉस्ट. तो उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए बहुत दिन लग जाता है. बल्कि कुछ एक ना एक दिन तो एहसास होगा, जबकि बहुत सारे लोगों को इस परिस्थिति में खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द poem, the ball poem. And now we'll be just going to the question answers. They are written in either phrase or clauses, not in complete sentences. So you need to develop them into sentences. The very first question is that, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Poet ऐसे क्यों बोल रहे कि मैं उसके मामले में, ये बच्चे के मामले में दखल या उसके मामले में नहीं घुसेंगे, और उसको पैसा क्यों नहीं दिया? So the answer is, the poet wanted the boy, okay, to learn by himself the meaning of loss. उसके मामले में poet अपने आप को शामिल इसलिए नहीं किया कि poet चाहते थे कि यह बच्चा खुद meaning of loss का meaning बच्चा खुद समझ जाए, इसलिए. So why didn't he give money? Poet ने पैसा क्यों नहीं दिया? Money is worthless. So अगर पैसा देते, it is useless, can't bring back the same ball. वो जो गेंद तुमसे खो गया, वो गेंद को वापस ला नहीं सकते पैसा. That is the first question answer. Second one. So did the boy have the ball for a long time? So is it linked to the memories of childhood when he played with it? Yes. The boy had the ball for a long time, and of course the ball is linked to the memories of his childhood days, his emotions, with whomever he played with this ball. So all the emotions and memories are associated with the ball. So that is the answer of second question. So the third question. So what does in the world of possession mean? So what is the meaning of world of possession? It means in this world, everyone, all people want to possess things. हम लोग सब चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, सब लोग खरीदना चाहते हैं. We need to buy the things, and lost things won't come back. In this world of possession, if something is lost, it won't be coming back. So world of possession, in this world, all people, everyone wants to possess things. सब चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं. And we are going to the very fourth question answer. Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words from the chapter. So the boy hasn't lost anything earlier because the line shows senses his first responsibility. So ball was the first thing that the boy lost. गेंद पहला चीज था जो ये बच्चा से खो गया. So that is the first thing he lost. So he did not lose anything else before. And we are going to the very fifth question. So what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain in your own words. So what does the poet say the boy is learning? ये इससे ये बच्चा क्या सीख रहे? In the world of possession, things will be lost. ये जो possession के दुनिया में बहुत सारे चीजें खो जाएंगे. And okay, the nature of loss is it gives us grief. ये loss का nature क्या है? ये हमें दुख देता है. So he learns the nature of loss. It gives us grief. But we need to stand up and move forward. And the boy is learning that ये loss में हमेशा पड़े नहीं रहना है,
बल्कि उससे खड़े होना है और आगे बढ़ना चाहिए. So the boy is learning to stand up and move forward. So, and the very sixth question is a personal question. You can answer it by yourself. So that's all about the question answers 2.